Recording. Bismillahirrahmanirrahim. If you have any question related to previous lecture, as those lectures were uploaded on the portal as well, so you can ask. Otherwise, we will proceed, and I request all of you who have entered to mute your mic. If you have any question, then you can unmute your mic. Okay. Jasim, if you can please mute your mic. Okay. In the previous lecture, I just give a glance to what a nominal interest rate is. Jasim, please put your mic on mute. अभी म्यूट नहीं है सर। हेलो हेलो Okay, thank you. Interest rate. So before discussing the nominal interest rate, what interest is? Actually, the basic background, the basic idea behind the interest is the value of the money. For example, you can buy a marker at $10 today. After a month or 2 or 3, you won't be able to purchase that marker at $10 because of the inflation. So the basic idea behind the interest is that what you can purchase right now at $10, you cannot purchase that thing after a month or 2 or after a year at $10. So what you need to do is to invest $10 right now on a certain rate. It might be 5%, it might be 10%, so that you could make yourself able enough to purchase what you want in the future. So this is the basic idea, the basic concept of the interest. Nominal interest rate, and interest rate is the rate at which you lend the money or you borrow the money. It might be from the bank, it might be from the company. Now, what nominal interest rate? Interest rate can be broadly divided into two. The first one is called the nominal interest rate, and the second one is called the real interest rate. Nominal interest rate, it is the sum of the real interest rate and inflation rate. Now, to understand this, we need to proceed further and discuss the real interest rate. It is the nominal interest rate minus inflation rate. Now, to understand the real interest rate, we need to move forward with an example. This example will clear your idea regarding the nominal interest rate, the real interest rate, and the inflation rate, or expected inflation. And this example, you can see the nominal interest, as I discussed, is the sum of the real interest rate and the inflation rate, right? And the real interest rate is the nominal interest rate minus inflation rate. Example is there. For example, आप $10 लाख का 10 साल के लिए एक गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करते हैं.
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इस बॉन्ड पे जो है वो 2.5% है। नॉमिनल डॉलर्स पर ईयर जो आपको मिलेंगे 10 लाख बॉन्ड पे वो आपको मिलेंगे $25,000 पर ईयर, ठीक है। और इन 10 years or after 10 years you have to pay back the principal amount, that is 10 lakh rupees, 10 lakh dollars। अच्छा, अभी यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो ऊपर 2.5% है, इट इज द सम ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन की अच्छा, अगर ये एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन की वो 2% है, या इन्फ्लेशन होगी 2%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2% जो आपने कमाई की थी ना, वो इन्फ्लेशन में चली जाएगी। 0.5% आपका खालिस मुनाफा होगा। जब आप नीचे आते हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इट्स 2%, the real interest rate is 0.5%, that is 2.5 minus 2%. So purchasing power is $5,000 per year. इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लाख डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, इन्फ्लेशन में राइज होता है, वो इंक्रीज कर जाता है 2%, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 2.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने $25,000 की कमाई नहीं की। असल में जो आपकी कमाई है वो है $5,000 per year. Now I will not move forward until you tell me, all of you, that have you got it or not. सबसे पहले दुनिया तो खैर अभी आई। जासिम, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, इलियास आपका है, मलिक का है, या आई के का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते सर जी क्वेश्चन है सर। जी जासिम। सर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का ना सर इससे पहले जो लेक्चर हुआ था मैंने नहीं लिया था सर, जो क्लास हुई थी सर, इसलिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर समझता नहीं हूँ ये क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सर। नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल कहाँ? इंटरेस्ट अच्छा जासिम, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का उधर हमने जस्ट नाम लिया था और फिर बताया था कि हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चले एक रिपीटिशन में कर लूंगा इसी का ऊपर लेक्चर्स का। ओके सर। इलियास, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, मींस यू गॉट इट। मलिक, कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं है सर। सर जी जी जासिम। सर जी क्वेश्चन कोई नहीं है सर। ओके, मैं एक दोबारा एक दफा रिपीट जासिम आपके लिए कर लेता हूँ। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या चीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जब भी हम क्लास लेते तो आप कहीं जा रहे होते हैं, इट्स क्वाइट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। लेकिन खैर जो भी है, हम दोबारा ज़रा एक रिपीटिशन कर लेते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्या चीज़? इट इज़ द सम ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। देखिए, इंटरेस्ट का आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। इंटरेस्ट है कि चीज़, ये किस्म का मतलब हम आम ज़ुबान में जो यूज़ करते हैं वो सूद है, जो कि इस्लाम में हराम, इंटरेस्ट लेना हराम।
इंटरेस्ट जो कि इसको फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि 10 रुपए की चीज अगर आप खरीद सकते हैं आज, 1 साल बाद आपको इसी चीज की जरूरत पड़ गई तो आप $10 में इसको नहीं खरीद सकेंगे। क्यों नहीं खरीद सकेंगे? चूंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से आप इसी चीज को आप नहीं खरीद सकेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक idea behind the interest. And interest rate is the rate at which you borrow or lend the money. आप या तो जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो वो कहते हैं कि आपने हमें इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट रेट 2.5% या 3% या 5%, व्हाटसएवर वो रेट परसेंटेज में क्लियर कर लेते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है, अच्छा फिर इंटरेस्ट रेट को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, एक रियल होता है। What nominal interest rate? It is the sum of the real interest rate and inflation rate. देखिए इस चीज को अभी समझने के लिए मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे रियल इंटरेस्ट। What it is? It is the nominal interest rate minus inflation rate. अच्छा, अभी इस चीज को समझने के लिए ये एग्जाम्पल को समझना इंतहाई जरूरी है। इसमें नॉमिनल का भी जिक्र है, इसमें रियल का भी जिक्र है, इसमें इन्फ्लेशन का भी जिक्र है, तो तीनों के तीनों कंसेप्ट जो है इसी एक स्लाइड में कवर हो जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर इन्फ्लेशन। हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, अब इसको हम एक एग्जांपल में एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए आप एक बंदा बॉन्ड खरीदता है गवर्नमेंट का 10 साल के लिए, और इस बॉन्ड की प्राइस जो है वो $10 लाख। गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको कहते हैं कि हम आपको इस पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देंगे 2.5% पर ईयर के हिसाब से। पर ईयर के हिसाब से आपने जो हमें $10 लाख दिए हैं, हम 2.5% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको देंगे। अच्छा, जब 2.5% आपको मिलता है $10 लाख, हेलो हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सैफी। सर आवाज खैर देखें सर खुला। शुक्र है। तबीयत देखा था खैर मुझे। जासी में चत रहा है। वैसे मैं पला रहा था क्लास में मखली। इलियासा Oi, संग क्या चल रिकॉर्डिंग स्टार्ट दे हाँ।
ईसा जी जी सारा थी। मेरी आवाज पहुंच रही सारों को? ईसा यस यस सर। सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके, वो वाला वाला कुछ टेक्निकल वो इश्यूज थे, दोबारा मैंने रिकनेक्ट किया। अच्छा, तो इस एग्जांपल, इस स्लाइड को जब आप समझ जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नॉमिनल को भी समझ गए और रियल इंटरेस्ट रेट को भी समझ गए और इन्फ्लेशन को भी समझ गए। जैसे हम अपना माइक म्यूट करें। चासी माइक बंद कर दो। अच्छा, इसको अगर आप समझ गए, सो मूविंग फॉरवर्ड, efficient market hypothesis और efficient market theory, ये एक दूसरा एंड लास्ट टॉपिक है फॉर टुडे। The efficient market hypothesis or theory, alternatively known as the efficient market theory, is a hypothesis that states that share price reflect अभी म्यूट हो गया। जी जैसे हम अभी म्यूट करें। तो ठीक है। That share prices reflect all information and consistent alpha generation is impossible. देखिए, efficient market hypothesis ये एक theory है, और theory आपको पता है कुछ स्टेटमेंट्स होती है जो कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोथेसिस किस चीज को कहते हैं कि एक मफरूजा होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि अगर जासम की इनकम ज्यादा हो जाती है, इनकम मतलब सैलरी उनकी ज्यादा हो जाती है, तो उनके खर्चे भी ज्यादा हो जाएंगे। ये एक हाइपोथेसिस बन गए, ठीक है, एक मफरूजा बन गए। इसी तरह एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है, ये भी एक मफरूजा है, एक थ्योरी है, और ये थ्योरी ये कहती है कि शेयर की कीमत जो है, देखिए आजकल आप स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाए, आपको मुख्तलिफ कंपनी के शेयर प्राइसेस आपको मिल जाएंगी। ये थ्योरी ये कहती है कि शेयर प्राइसेस जो होती है मार्केट में, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है। अभी फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस की अगर 10 है किसी कंपनी की, तो ये अच्छा, शेयर प्राइसेस 10 है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें देती है कि कंपनी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही। एंड कंसिस्टेंट अल्फा जनरेशन इज इम्पॉसिबल। अच्छा, अल्फा किसे कहते हैं? अल्फा रिफर्स टू एक्सेस रिटर्न्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अबाउट द बेंचमार्क। देखिए, ऊपर वाली थ्योरी ये कहती है कि स्टॉक प्राइस जो है वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है आपका पूरा का पूरा कंपनी का, कि अगर आज फॉर एग्जांपल कंपनी की शेयर प्राइस $10 है, कल पहुंचती है 11 पे, फिर परसों दोबारा 10 पे, फिर 11 पे, फिर 12 पे, फिर 11.5, और इसी तरह मूवमेंट वो शेयर करता रहता है। तो इसका मतलब ये एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये कहती है कि ये जो अप डाउन शेयर प्राइस में आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड में कंपनी की परफॉर्मेंस शो करता है, और ये अल्फा जनरेशन इंतहाई मुश्किल है कि हो। अच्छा, अल्फा जनरेशन का मतलब क्या है? अल्फा जनरेशन का मतलब ये है कि से आपके क्लास में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बंदा अगर मार्क्स लेगा तो वो लेगा 100 में से 65 to 75 इन बिटवीन, ये मार्क्स लेगा, क्योंकि वो जितना मुझे पता है कि वो कितना काम करता है, कितनी मेहनत करता है, उसकी बुनियाद पे मैं एक हाइपोथेसिस जनरेट करता हूँ, 65 to 75। अच्छा, थ्रू आउट 7 सेमेस्टर्स में उन्होंने इसी तरह मार्क्स दिए, मतलब इन बिटवीन थे 65 to 75।
इस बिटवीन इन बिटवीन थे। अभी 8वें सेमेस्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 90 मार्क्स ले ले। अगर 90 मार्क्स लेता है ना, तो इसका मतलब है कि अल्फा जनरेशन हुई है, उन्होंने बहुत बड़ा छक्का मारा है और उन्होंने इंतहाई जबरदस्त मार्क्स लिए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है। तो अल्फा किसे कहते हैं? अल्फा रिफर्स टू एक्सेस रिटर्न्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अबाउट द बेंचमार्क रिटर्न। देखिए, वो शख्स से हम तवक्को कर रहे थे कि वो इन बिटवीन 65 to 75 मार्क्स लेगा। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 95 मार्क्स ले ले या 90 मार्क्स ले ले। अगर वो ऐसा लेता है, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा जनरेशन हुई है। एक्सिस, या हम एक दूसरी मिसाल आपको शेयर से रिलेटेड देंगे। हमें कंटिन्यूसली 5-10 साल में इसी तरह लगता है कि पेप्सी के शेयर जो है वो $10 to $15 मूवमेंट करते हैं, मतलब 10 से 11, 11 से 10, 10 से 12, इसी तरह 11 से 13, 13 से 12 मूवमेंट फ्रॉम $10 to $15 वो करते होते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये थ्योरी ये कहती है कि ये अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो उन की इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट इन बिटवीन $10 to $15, मतलब या तो $1 उनको मुनाफा मिलेगा, या 2 या 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5 हो सकता है। ये थ्योरी ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 14 पे खरीदें, $14 पे, और ये एकदम $25 पे चला जाए। ऐसा नामुमकिन होता है। अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा जनरेशन हुई है, मींस इन्होंने एक्सेस रिटर्न जो है वो हासिल कर लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड